Good morning. I am Kaveri Krishna and I am social science teacher from Pragyan Public School, Jaber. And today we are going to study the chapter Understanding Diversity of Class 6. In this chapter, first we will study the meaning of diversity. We will understand that what do we understand by the word diversity. So first we will know the meaning of diversity. So what do we understand by the diversity? Whenever you look around you, जब आप कभी भी अपने आसपास देखोगे, then you will notice that nature offers variety of things in our surroundings. We will see several types of plants, trees, flowers, birds, animals, as well as human beings. You see different colors and you can hear different sounds. It means हर किसी का अपना एक अलग अलग डिफरेंट साउंड्स होता है, डिफरेंट कलर्स होता है. लाइक जो बर्ड्स होती है उनकी हर किसी की साउंड्स अलग होती है. वैसे ही जब हम ह्यूमन बींग्स, अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, वी ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. सम आर टॉल, सम आर स्मॉल. ऐसे ही अगर हम प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स आर ऑल्सो डिफरेंट from each other. Like some plants are tall, some plants are small, some are woody, some are सॉफ्ट. ऐसे ही अगर हम फ्लावर्स की बात करते हैं तो फ्लावर्स में भी वी कैन सी डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ फ्लावर्स. उसके कलर्स अलग होते हैं, उसके शेप्स अलग होते हैं. सो यू कैन फाइंड वेराइटीज़ इन ईच एंड एवरी थिंग्स इन आवर सराउंडिंग्स. नेचर ऑफर्स वेराइटीज़ ऑफ थिंग्स इन आवर सराउंडिंग्स. इसी की वजह से जो हमारा वर्ल्ड है वो एक इंटरेस्टिंग प्लेस हम वर्ल्ड को कह सकते हैं. because it provide us different things in our surroundings. सीजन की बात करें, कभी ठंडी होती है, कभी गर्मी होती है, कभी बारिश होती है. So here we can see that nature offers varieties of things in our surroundings. It makes our world an interesting place. So diversity means differences. We find differences in each and every things, whether it is living things or non-living things. हमें diversities हर जगह देखने को मिलती है. So I hope you all understand the meaning of diversity. Diversity means the presence of a wide range of qualities or features is called diversity. It means differences in each and everything. Like human beings are also different from each other. We all are different from each other and we all are unique. But we all are different but we are स्पेशल इन आवर सेल्फ. हम अपने आप में एक स्पेशल होते हैं. वैसे ही हर एक चीज़ अपने आप में स्पेशल होती है. सो डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंसेस. सो like in nature, diversity can be seen in the way people live in this world. It means human beings cannot fulfill all their needs on their own. It means जो ह्यूमन बींग्स होती है वो अपनी पूरी नीड्स को खुद अपने आप फील नहीं कर सकती है. हमें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है. विच वी हैव टू डिपेंड्स ऑन अदर्स फॉर द फुलफिलमेंट्स ऑफ आवर नीड्स. इट मीन्स हमें अपने नीड्स को पूरा करने के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है. दैट इज़ वाई although everyone is born unique and grow up as different from everyone else, but each of us is brought up us to live together in groups. means हम लोग एक दूसरे से अलग हैं, यूनिक हैं, अलग. एवरीवन इज़ बॉर्न यूनिक, लेकिन हम सब अलग अलग तरीके से बड़े होते हैं, लेकिन हम एक ग्रुप में रहते हैं. वो ग्रुप की हमें क्यों ज़रूरत होती है? क्योंकि वी ऑल आर डिपेंड्स ऑन ईच अदर. हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, इसलिए हमें ग्रुप में रहने की ज़रूरत होती है. सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ ग्रुप्स हेयर. वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स. सो यहाँ पे हम 3 ग्रुप्स की बात करेंगे. जो फर्स्ट ग्रुप होता है वो होती है हमारी फैमिली. फैमिली मीन्स द इमीडिएट ग्रुप इन विच वी लिव इज आवर फैमिली. जिसमें हम रहते हैं, वो सबसे जो फर्स्ट ग्रुप हमारा होता है वो होता है फैमिली. देन आफ्टर फैमिली, community it is a group of families either living in the same area or having some common links. इसका मतलब ये होता है
कि एक ग्रुप की जो फैमिली होती है, एक पूरी फैमिली की ग्रुप होती है, या तो वो सेम एरिया में रहे या उनका कुछ कॉमन लिंक हो, लाइक हमारे रिलेटिव्स, वो सब एक कम्युनिटी के अंदर आ जाते हैं। Then after community we have nation. Nation means the large group of people living together within the geographical area of a country under a common government. इसका मतलब ये हुआ जैसे हम सब एक नेशन के अंदर आते हैं, वी ऑल आर इंडियंस, और हमारा एक ही गवर्नमेंट होता है। जैसे अभी हमारा जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो है नरेंद्र मोदी, उन्होंने कुछ रूल्स पास किए, कुछ रूल्स सेट किए, तो वो सब हम सबको फॉलो करना पड़ेगा। सो नेशन मीन्स एक ग्रुप जहाँ पे सारे लोग रहते हैं विद इन ए जियोग्राफिकल एरिया। जियोग्राफिकल एरिया मीन्स पूरी एक इंडिया कंट्री के बाउंड्रीज के अंदर जो आती हो, मीन्स पूरी इंडिया की एक कंट्री एक नेशन कहलाती है, और हमारा एक कॉमन गवर्नमेंट होता है, उसके हमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हम सबको फॉलो करना पड़ता है। सो वी ऑल आर इंडियंस, तो हमारा नेशन क्या हुआ? इंडियन। सो नेशन मीन्स द लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर विद इन द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ अ कंट्री, मीन्स हमें एक बाउंड्री के अंदर रह रहे, इंडिया की एक बाउंड्री होती है, उसी के अंदर जो सारे लोग रहते हैं वो एक ग्रुप्स में रहते हैं, उसको बोलते हैं नेशन। सो वी कैन सी that we have different types of social group. First one is family, second one is community, and third one is nation. Then कैसे डाइवर्सिटी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, हम लोग एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंड रहते हैं, वी विल सी हियर। पीपल परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ डिपेंडिंग ऑन देयर इंटरेस्ट, एबिलिटीज, स्किल्स एंड एजुकेशन। मीन्स जैसे मैंने आपको बताया कि हम सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, वी ऑल आर लिविंग इन अ ग्रुप्स बिकॉज वी ऑल आर डिपेंड्स ऑन ईच अदर। जैसे जो लोग होते हैं वो हर कोई एक अलग अलग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग और अपने एजुकेशन के अकॉर्डिंग। तो हर किसी की अपनी अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है। सो पीपल डिपेंड्स ऑन ईच अदर फॉर द फुलफिल ऑफ देयर नीड्स। हम सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं अपनी नीड्स को पूरी करने के लिए। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल इन अ विलेज कम्युनिटी द फार्मर प्रोड्यूसेस फूड नॉट ओनली फॉर हिज फैमिली। एक विलेज कम्युनिटी की बात करें, वहाँ पे जो फार्मर होता है वो फूड जो प्रोड्यूस करता है वो सिर्फ अपने फैमिली के लिए ही नहीं करता है, बल्कि वो अपनी पूरी एक कम्युनिटी के लिए करता है। एंड ही इन टर्न्स डिपेंड्स ऑन अदर मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी फॉर हिज अदर नीड्स लाइक क्लोथिंग, हेल्थ सर्विसेज एंड सो ऑन। अगर हम विलेज कम्युनिटी की बात करें तो जो एक फार्मर है वो जो क्रॉप प्रोड्यूस कर रहा है, फूड प्रोड्यूस कर रहा है, वो सिर्फ अपनी फैमिली के लिए नहीं कर रहा है, बल्कि वो अपनी पूरी कम्युनिटी के लिए कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो कम्युनिटी है वो सब किसके, अपने फूड के लिए किसके ऊपर डिपेंड है? फार्मर के ऊपर डिपेंड है। और जो फार्मर है वो फार्मर है वो अलग अपनी अलग नीड्स को पूरी करने के लिए, जैसे क्लोथिंग हो गया, हेल्थ सर्विस हो गया, उसको हॉस्पिटल जाना है, तो वो एक दूसरे कम्युनिटीज़ के ऊपर डिपेंड है। तो ऐसे ही वी ऑल आर डिपेंडेंट्स ऑन ईच अदर। So here we can see that in India how classified the diversity. It is on the basis of first language, religion, dress, economic activities, food, festival and dances. So first we will see that हमारी फैमिली में भी डाइवर्सिटीज होती है। टाइप्स ऑफ फैमिलीज, वी हैव basically two types of families. First one is nuclear family and then second one is joint family. So यहाँ पे भी हम डाइवर्सिटीज देख सकते हैं, टाइप्स ऑफ फैमिलीज के अंदर भी हमें डाइवर्सिटीज देखने को मिलती है। सो फर्स्ट अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियर फैमिली की, सो न्यूक्लियर फैमिली इन दिस ओनली पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रंस लिव टुगेदर। मीन्स सिर्फ आपके पेरेंट्स और उनके बच्चे एक साथ रहते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ फैमिलीज यूजुअली फाउंड इन सिटीज़। देन वी हैव जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली में वी हैव पेरेंट्स, चिल्ड्रंस, ग्रैंड पेरेंट्स एंड अदर रिलेटिव्स
live under a common roof and share the same kitchen. It means हम सारे जो पेरेंट्स हो गए, चिल्ड्रंस हो गए, ग्रैंड पेरेंट्स और उनके रिलेटिव सब एक साथ रहते हैं और एक ही किचन शेयर करते हैं, उनको बोलते हैं जॉइंट फैमिली। और ये ज़्यादातर हमें इस टाइप की फैमिलीज हमें ज़्यादातर विलेज एरिया में देखने को मिलती है। हियर यू कैन सी the picture of nuclear family and joint family. On the left hand side you can see the nuclear family in which father, mother and their children. This is an example of nuclear family. And in the right hand side you can see the picture of joint family in which grandparents, their children and relatives, all the people living together in the same roof and share the same kitchen. So this is the difference between nuclear family and joint family. So here also you find diversities. यहाँ पे भी हमें diversities देखने को मिलती है in the types of family, nuclear family and joint family. देन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो हमारे हेड होते हैं फैमिली के, वो ज़्यादातर एरिया में जो होते हैं, जो हेड होते हैं वो मेल मेंबर होते हैं। मीन्स उन्हीं का डिसीजन सबसे आगे रखा जाता है, उन्हीं के डिसीजन को हमें फॉलो करना पड़ता है। और जो प्रॉपर्टी होती है हमारे इंडिया में, ऐसा रूल है कि जो प्रॉपर्टी होती है फादर की वो सन के पास जाती है। बट वी कैन सी that in some parts of India, generally in the northeastern parts of India and southern parts of India, we will see that their woman is the head. Means वहाँ पे जो women होती है वो head होती है और जो उनकी प्रॉपर्टी होती है वो मदर से डॉटर को पास होती है। मीन्स यहाँ पे थोड़ा अपोजिट है। अगर हम पूरे इंडिया की बात करें तो पूरे इंडिया में क्या होता है, जो प्रॉपर्टी होती है फादर की वो जनरली सन को पास होती है। बट अगर हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट इंडिया की और साउथ इंडिया के पार्ट को हम बात करते हैं तो वहाँ पे जो प्रॉपर्टी होती है, मदर की प्रॉपर्टी होती है, वो डॉटर को पास होती है और जो वहाँ पे वुमेन होती है वो फैमिली की हेड होती है। सो हेयर वी फाइंड सम डाइवर्सिटीज। सो यहाँ पे भी हमें डाइवर्सिटीज देखने को मिलती है। एंड दिस टाइप ऑफ फैमिलीज आर फाउंड इन द पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एंड केरला। देन वी फाइंड डाइवर्सिटीज इन द लैंग्वेजेस ऑल्सो। लैंग्वेजेस में भी हमें इंडिया में डाइवर्सिटीज देखने को मिलती है। इन इंडिया वी हैव 22 मेजर लैंग्वेजेस। हमारे इंडिया में जो मेजर लैंग्वेजेस हैं वो टोटल 22 हैं। एंड वी हैव 1625 डायलेक्ट्स ऑफ वेरियस लैंग्वेजेस। मतलब लैंग्वेजेस के अलग अलग फॉर्म हैं इतने। सो इन इंडिया the languages most commonly spoken in India can be broadly divided into two groups. जो इंडिया में लैंग्वेजेस बोली जाती है उसको हम दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। जो सदर्न इंडिया में लैंग्वेज बोली जाती है उस ग्रुप को हम बोलते हैं द्रविडियन ग्रुप्स। इट मीन्स द लैंग्वेजेस स्पोकन इन सदर्न इंडिया belongs to the Dravidian groups and the languages spoken in northern India are derived from Sanskrit. So हमने लैंग्वेज को क्या किया, यहाँ पे दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। एक तो जो सदर्न इंडिया की लैंग्वेज है उसको हमने द्रविडियन ग्रुप में डिवाइड कर दिया और जो नॉर्दर्न इंडिया है उसके लैंग्वेज को हमने कहाँ से लिया, संस्कृत से लिया। सो यहाँ पे लैंग्वेज को हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। After languages, you will find diversities in the religion also. As we all know that in India, people follow different types of religions according to their choices. अपनी choices के according लोग अपने अपने अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं। वी ऑल हैव अ फ्रीडम टू चूज आवर ओन रिलीजन। हम सबको फ्रीडम है कि हम किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। सो इंडिया में हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो रिलीजन फॉलो की जाती है वो है हिंदुइज्म। इट मीन्स जो हिंदूज हैं वो सबसे ज़्यादा इंडिया में है विच इज़ 80.5%। आफ्टर हिंदू रिलीजन Islam religion is followed by Hindus, that is 14.23%.
then Christianity we have 2.3%, then Sikhism we have 1.9%. So here also you will find the diversities in religion. Also in India, people follow different types of religion according to their own choices. So we will see that different religions have different worship places. इसका मतलब ये है कि लोग, हर रिलीजन के लोग अलग अलग जाते हैं अपने वर्शिप करने के लिए, अलग अलग उनके प्रेयर करने के अलग अलग प्लेसेस होती है. जस्ट लाइक मुस्लिम गोज टू अ मॉस्क, हिंदू गोज टू अ टेम्पल, क्रिश्चियन गोज टू अ चर्च एंड सिख गोज टू अ गुरुद्वारा. ये सब अलग अलग जाते हैं वर्शिप करने के लिए. लेकिन यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हम लोग अलग अलग जगह जा रहे हैं, बट हम लोग काम वही करने जा रहे हैं, सेम काम करने जा रहे हैं. क्या सेम काम करने जा रहे हैं? प्रेयर करने जा रहे हैं. सो ये कह सकते हैं कि हम लोग काम वही करते हैं बट इन अ डिफरेंट वे, अलग तरीके से करते हैं. सो दिस इज डाइवर्सिटी. हम सबका पर्पस एक ही है. क्या पर्पस है? प्रेयर करना. अलग अलग हम जाते हैं प्रेयर करने, लेकिन अलग अलग तरीके से. तो वी कैन से दैट द डाइवर्सिटी इन रिलीजन about doing things differently and not doing different things. It means हम चीज़ों को अलग तरीके से कर रहे हैं, अलग चीज़ नहीं कर रहे हैं. So diversity in religion is about doing same things differently and not doing different things. Then we can see diversities in the ways of life. That we can see diversity that जो लोग होते हैं वो अलग अलग तरह के ड्रेस पहनते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन, अकॉर्डिंग टू देयर क्लाइमेटिक कंडीशंस. अपने अलग उनके ड्रेस पहनने का सबका एक अलग अलग तरीका होता है, और ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है कि वो जो लोग होते हैं उनके एरिया, उनकी क्लाइमेट वहाँ पे कैसी है, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है. अगर ठंड होगी तो उसके अकॉर्डिंग लोग ड्रेसअप करेंगे, अगर वहाँ पे गर्मी होगी तो उसके अकॉर्डिंग ड्रेसअप करेंगे. तो ये सब चीज़ें बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है. सो हियर you can see that people in different regions dress differently. अलग अलग रीजन के लोग अलग अलग तरह के ड्रेस पहनते हैं. For example, people who live in Kashmir, a cold and mountainous area, wear a loose robe called पहरन. यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो, एक आदमी है उसने पहरन पहन रखा है. पहरन होता है, इसको कश्मीर में लोग पहनते हैं क्योंकि ये जो है वो हमें ठंड से बचाने में मदद करती है. और इसके अंदर क्या होता है, ये एक लूज ड्रेस होती है और इसके अंदर लोग कंगरी रखते हैं. वो एक स्मॉल बास्केट होता है जो कि जिसके अंदर हम चारकोल रख के उसके अंदर में रखते हैं. वो हमें क्या करता है, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द कोल्ड. तो जो ये पहरन है ये ज़्यादातर लोग कश्मीर में पहनते हैं, यहाँ वहाँ पे लोगों को ये ठंड से बचाती है. सो दिस इज द एग्जाम्पल of people who live in Kashmir, a cold and mountainous area, wear a loose robe called pehran. Then we can see here the large turban. यहाँ पे आप एक पिक्चर देख रहे हो जिसमें एक आदमी ने अपने सर पे टर्बन पहन रखी है. So turban are worn by the Rajasthani man and it is suitable for heat. ये लोगों को गर्म से बचाता है. कि जो थार डेजर्ट है वो राजस्थान में, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो लोग अपने आप को गर्म से बचाने के लिए हमेशा सर पे टर्बन पहन के रखते हैं. जैसे आप कभी धूप में जाते हो तो यूजुअली वेयर द कैप, ऐसे ही जो राजस्थानी लोग होते हैं वो अपने आप को गर्म से बचाने के लिए टर्बन पहन के रखते हैं. यू ऑल नो दैट राजस्थान एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे गर्मी पड़ती है. तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो लोग होते हैं वे अलग अलग तरह के ड्रेसअप करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रीजन, अकॉर्डिंग टू देयर क्लाइमेटिक कंडीशन, कि वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, वहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग लोग ड्रेसअप करते हैं. देन वी कैन सी डाइवर्सिटीज इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑल्सो. हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में भी डाइवर्सिटीज़ देखते हैं. लाइक जियोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस जनरली डिटरमाइन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ अ रीजन. उस रीजन की वहाँ की कैसी क्लाइमेटिक कंडीशन है उसी के ऊपर लोगों की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डिपेंड होती है. जैसे मैंने आपको ड्रेसिंग में बताया कि लोग जो ड्रेसअप करते हैं अलग अलग रीजन का अलग अलग ड्रेसिंग स्टाइल होता है, क्योंकि वहाँ की अलग अलग
क्लाइमेटिक कंडीशन होती है। वैसे ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में भी हर किसी की अपनी अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, क्योंकि हर एक जगह का क्लाइमेटिक कंडीशन अलग अलग होता है। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें हम, तो अगर फ्लैट लैंड है, वहाँ पे एकदम फ्लैट लैंड है, प्लेन एरिया है, तो वहाँ पे हम इजली एग्रीकल्चर क्रॉप्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग वहाँ पे इंगेज होंगे एग्रीकल्चर में। ऐसे ही अगर हम माउंटेनियस एरिया की बात करें, तो जो माउंटेनियस एरिया का लैंड होता है वहाँ पे एग्रीकल्चर करना पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पे लोग अलग टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे। वैसे ही अगर हम कोस्टल एरियाज़ की बात करें, तो कोस्टल एरियाज़ में जो एरिया समुद्र के किनारे होता है, तो वहाँ पे जो फिश है वो ईजिली अवेलेबल होता है, तो ज़्यादातर लोग वहाँ पे फिशिंग में इन्वॉल्व होते हैं। वैसे ही अगर हम फ्लैट लैंड की बात करें, जो लोग प्लेन एरिया में रहते हैं, वहाँ पे ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व रहते हैं, एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होते हैं, ज़्यादातर लोग फार्मर होते हैं। इस तरीके से हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में भी डाइवर्सिटीज़ देख सकते हैं, क्योंकि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड होती है, हमारा जियोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर डिफरेंट होती है। अगर हम वी विल फाइंड डाइवर्सिटीज इन फूड्स ऑल्सो। इंडियंस हैव अ डाइवर्स फूड हैबिट्स, हमारा अलग अलग तरीके का फूड हैबिट्स होता है। जैसे हम अगर सदर्न इंडिया की बात करें, तो वहाँ पे पीपल ईट्स लॉट्स ऑफ कोकोनट्स एंड फिश, क्योंकि वहाँ पे कोकोनट बहुत ज़्यादा होती है, और सदर्न इंडिया ज़्यादातर कोस्टल एरियाज़ के पास में होती है, समुद्र के किनारे में होती है, तो वहाँ पे जो फिश है वो हमें ईजिली अवेलेबल हो जाता है। तो जो वहाँ पे जो डाइट्स होती है लोगों की, ज़्यादातर फिश होती है। जैसे मैं अगर एग्जांपल की बात करूं वेस्ट बंगाल की, वेस्ट बंगाल में यू ऑल नो दैट वहाँ की लोगों की जो फेवरेट फूड होती है वो होती है फिश एंड राइस। क्योंकि जो वेस्ट बंगाल है वो समुद्र के किनारे में है, वहाँ पे फिश ईजिली अवेलेबल हो जाता है। ज़्यादातर लोग जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है उनकी ज़्यादातर फिशिंग होती है, तो वहाँ पे लोग अपने डाइट्स में भी फिश एंड राइस लेना पसंद करते हैं। वैसे ही अगर हम साउथ इंडिया की बात करें, तो फूड इज़ कुक्ड विद अ लॉट ऑफ स्पाइसेस एज स्पाइसेस आर ग्रोन देयर। जो अगर हम साउथ इंडिया की बात करें, तो वहाँ पे जो फूड है वो बहुत सारे स्पाइसेस से बनाए जाते हैं। वहाँ पे लोग मसाला ज़्यादा यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्पाइसेस को उगाया जाता है, वहाँ पे स्पाइसेस की खेती होती है, वहाँ पे इजीली अवेलेबल होता है, इसलिए वहाँ पे लोग ज़्यादा अपने खाने में स्पाइसेस यूज करते हैं। देन इन इंडिया यू कैन सी द डाइवर्सिटीज in the festivals also. In India we celebrate different types of festival in a different way. हम इंडिया में अलग अलग टाइप के फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, बट इन अ डिफरेंट वे। हर किसी का फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का तरीका अलग होता है। जैसे हम बात करें बैसाखी, जो बैसाखी फेस्टिवल होता है वो एक पंजाब का हार्वेस्ट फेस्टिवल है। ऐसे ही वी हैव अ डिफरेंट हार्वेस्ट फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, लाइक ओनम, इट इज़ अ फेस्टिवल ऑफ केरला। ओनम जो है इट इज़ अ हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला। देन वी हैव बिहू, बिहू इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ असम। वैसे ही वी कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स इन इंडिया, और हर किसी को सेलिब्रेट करने का अलग अलग तरीका होता है फेस्टिवल्स में। वैसे ही वी कैन सी डिफरेंसेस इन डांस ऑल्सो। डांस की अगर हम बात करें, तो वी कैन सी दैट भरतनाट्यम इज अ डांस फॉर्म ऑफ तमिलनाडु। जो भरतनाट्यम है वो तमिलनाडु का एक डांस फॉर्म है। वैसे ही कथकली इज अ डांस फॉर्म ऑफ केरला। देन भांगड़ा इज अ डांस फॉर्म ऑफ पंजाब। छाऊ इज अ डांस फॉर्म ऑफ झारखंड। Then here we can see that in India we find lots of diversities. हमें हर एक चीज़ में डाइवर्सिटीज देखने को मिलता है इंडिया में। जैसे हमने इस चैप्टर में देखा, वी हैव अ डाइवर्सिटीज इन ड्रेसेस, फूड हैबिट्स, वी हैव डाइवर्सिटीज इन फेस्टिवल्स, डांस, वी हैव डाइवर्सिटीज इन पीपल्स चॉइसेस। हर एक चीज़ में डाइवर्सिटीज होती है। यहाँ पे सीजन, हमेशा सीजन चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू द टाइम। कभी ठंडी होती है, कभी हम बारिश का मज़ा लेते हैं। यहाँ पे हमें अलग अलग टाइप के फ्लावर्स, अलग अलग टाइप के ट्रीज़, हर चीज़ में हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। डाइवर्सिटीज मेक इंडिया अ ट्रूली अमेजिंग प्लेस टू लिव इन इट। क्या आप लोगों को नहीं लगता है कि डाइवर्सिटी की वजह से इंडिया जो है ये एक अमेजिंग प्लेस है? यहाँ पे रहने में लोगों को मज़ा आता है, क्योंकि हमें यहाँ पे
बहुत अलग अलग चीज़ें करने के लिए है, अलग अलग चीज़ें देखने के लिए है। वैसे इट इज़ इवन मोर अमेजिंग दैट इन स्पाइट ऑफ ऑल आवर डिफरेंसेस वी इंडियंस हैव सम स्ट्रॉन्ग सिमिलैरिटीज़। हमारे पास बहुत सारी डिफरेंसेस के बावजूद भी हम सारे इंडियंस में एक स्ट्रॉन्ग सिमिलैरिटीज़ है जो कि हम सबको एक इंडियन बनाती है। इट मीन्स हमें इतने सारे डाइवर्सिटीज़ होने के बाद भी वी ऑल आर वन। हम एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उनको सुनते हैं। सो वी ऑल आर वन एज अ इंडियंस। सो इतने सारे डाइवर्सिटीज़ के बाद भी हम सब आपस में एक दूसरे के साथ रहते हैं। सो दिस इज द चैप्टर ऑफ अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी और डाइवर्सिटीज़ किस किस चीज़ों में हमारे इंडिया में देखने को मिलती है, इस चैप्टर में हमने पढ़ा। थैंक यू।